मैं हूँ रुचा इनामदार. So technically I'm not a model. I'm an actor. मैं बहुत भटकती हूँ और बहुत बात करती हूँ. मतलब कुछ लोग हैं जो कहते तू ना बिल्कुल दाल चावल सी है. कुछ कहते कि तू पूरी तंदूरी चिकन है. तो अगर समझिए बंदा अच्छा है और बट फिलहाल उसे वो फील हो रहा है जो हो रहा है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मली अच्छे से विद रिस्पेक्ट उससे बात कर लेती हूँ. तब क्या होता है ना, वो जो बबल है ना, वो फूट जाता है. बस शब्दों में समा जाए ऐसी वो नहीं है. पूरा दिन बात कर सकती है, पूरा दिन हंसती रह सकती है. मॉडल एंड एक्टर रुचा इनामदार आज मेरी गेस्ट हैं और वो फुल पैकेज हैं. कैसी हैं, कैसी हैं, आप उन्हीं से सुन लीजिए. This was the cutest introduction, I must say. Welcome to the show, Rucha. Thank you, pleasure being here. Hi guys, मैं हूँ रुचा इनामदार और आप मुझे देख रहे हो अड्डा अनफिल्टर्ड पे. You know the drill. Like, share, subscribe. देखो पहले ही बोल दिया. So being a dentist and then being a model, like you practiced डॉक्टर का काम जो आपका डेंटिस्ट का होता है. नहीं. How does it feel? You know, इतने बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, इतनी बड़ी ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है. I think अच्छा लगता है. You have that chin up attitude? No. The typical models wala? Do you think so? No, like, I don't. Now that we have spoken, do you really think so? No, I don't. नहीं यार, नहीं. Actually, see, I'll tell you what. How do I feel? I feel very good about this because this is something that I wanted to do. This is something that I enjoy doing. What I feel the best about, especially because you mentioned stars and all, is what my parents and what my family feels when I get to work with, people, who are out there. Yeah, I know. I've seen all your work. Yeah, so I think वो बहुत अच्छा लगता है. Just to like tell you a bit. Now you have seen my work, right? So there was one ad that I was shooting for with Bachchan sir, and my dad, who has been Dean JJ Hospital, and like someone himself, he's a diehard fan of Amitabh Bachchan. In fact, all 4 generations of my family, we all are like fans of him. So when he got to know, I cannot forget the expression on his face. He was very excited. He was very proud. And he went and got a picture printed. Okay, जो उनके स्टैचू के साथ लिया हुआ. And he got it to me and he said, कल इस पे एक ऑटोग्राफ लेके आओगी. And I told him, I said, Baba, I'm going there for work. He's like, so what? He's the Amitabh Bachchan, I said, yeah, okay. And then while we were shooting and all, I told him, I said, my father loves you. And he said, हाँ बिल्कुल. And he, in his andaz, spoke about it and all of that. I think that expression on my, thank you. So you took the autograph? Yeah, I did. He did give. We took good pictures also. He was very kind. When I took, thank you. And then? Yeah, so when I got back home and when I gave that picture to my father, the smile that was there on his face, or the smile that I see in my mom's eyes when, somebody calls and says, अच्छा आपकी बेटी उसकी हीरोइन है. Thank you. That's unbeatable. So you have siblings? Yes, I have an elder brother. Okay. His name is Rahul. He's also an artist, but he's not an actor. Okay. He's into painting, so full time into that. So when you go to family weddings में रिश्तेदारी में शादियां वगैरह होते हैं तो पेरेंट्स आपको जब इंट्रोड्यूस कराते हैं एकदम प्राउडली, how does it feel? Very nice. सब में stand out करते हैं जब. See, by now, honestly, people who know me, they know what I do and all of that. So they don't have to like introduce me. When I enter, it's like, to new people. They're like, oh, Rucha, you're here. Can I take a picture with you? We'll have a picture and all of that happens, which is very cute. It just feels very nice. It just feels very nice that people who love me and people who I love celebrate what I do. Are there people who do not love you? Like,
Do you see? Touch wood, no. No, thankfully. Do you no. see J element in people's eyes at times? No. Do you? No. No. Because of this smile of yours, Sarah. I think I have been very blessed with a lot of good people around me, like genuinely. You put such genuine smile. वो अगर आपके बारे में नेगेटिव सोच भी रहा होगा तो वो स्माइल से सारा Actually, वॉश आउट honestly, हो नहीं जाता है. सोचते यार नेगेटिव. इनफैक्ट मेरे एक दोस्त का ये स्टेटमेंट है. वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने कहा कि लोग तो अच्छे होते हैं एंड ही इज लाइक नहीं तुम्हें अच्छे लोग मिले. एंड देन ही वेंट बैक एंड ही कॉल्ड मी सेइंग यू नो आपको अच्छे मिले. तुम कुछ ऐसा ट्रिगर करती हो कि सामने वाले के अंदर कि उन्हें लगता है यार ये ना प्यारी सी इसको ना ऐसे इंटैक्ट रहने दो. सो व्हेन आई ट्रैवल बिकॉज ऑब्वियसली आप जब सोलो ट्रैवल वगैरह करते हो तो पेरेंट्स आर वरीड कि यू नो why do you want to do it, whom will you meet and all of that. I'm not worried about it. I just feel there's a lot of goodness. And you attract बहुत that. अच्छा ही है यार, बहुत अच्छा ही है दुनिया में. अपने पास अच्छा ही आती है. So you attract that. Yes, I do. And what do you feel bad about? Like किस बात पे गुस्सा आता है? आता है? गुस्सा बहुत कम आता है. आता है तो किस बात पे? I think काम के फ्रंट पे अगर कोई वक्त दे और लेट करे. अच्छा. तो मैं बहुत. You're very punctual. I'm punctual, yeah. नहीं, I understand. मतलब हम मुंबई में रहते हैं, like मुंबई में traffic is like a thing. It's understandable, but it has to be genuine. It has to be legit कि यार मैं निकली थी, but car broke down, traffic लगा, understandable. But overall, I don't know. That's one thing that I don't really like because मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है. तो अगर मुझे एक आध घंटा ऐसी पहले किसी ने अगर बुलाया कि मैम आप आ जाइए, मैम आप खा लीजिए, नहीं दोस्त मैं खा के आऊंगी, आपको जिस टाइम पे मैं चाहिए उस टाइम पे बुलाओ. सो प्रॉब्ली पर गुस्सा नहीं आता. आई डोंट लाइक इट. गुस्सा मुझे कब आता है? पहले तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं था. लाइक लिटरली गुस्सा नहीं आता था. देयर इज अ फिल्म दैट आई डिड कॉल्ड -31. उस फिल्म में वो जो कैरेक्टर था प्रेक्षा कॉप है, बहुत गुस्सा करती है. मतलब यहाँ तक गुस्सा करती है कि उसके पापा को ढकेल देती है और चिल्लाती है एंड ऑल ऑफ दैट. तो तब तक तो मुझे बहुत डर लगता था कि भाई मैंने मेरे डायरेक्टर से भी कहा था कि यार हेल्प कर देना, कभी इतना गुस्सा आया ही नहीं है. वो होने के बाद ना मुझे लगता है कुछ तो अंदर अनलॉक हो गया. उसके बाद शायद. So are you a trained actor? No, so I'm a self-trained actor. Like तो स्कूल में होता है ना कि कौन किस में पार्टिसिपेट करना चाहेगा वाला. तो मेरा हाथ उठता है, मैम मैं ये कर लूंगी, मैम वो कर लूंगी. So I didn't even realize when I got on stage, when I got so comfortable. In fact, I think I was just happy being on stage. Okay, so acting happened to me even before I kind of realized it. And then वो होता है ना कि पहले आप स्कूल में करते हो, फिर इंटर स्कूल, फिर कॉलेज, इंटर कॉलेज, एंड हर जगह जीतते जाते हो. मतलब इनफैक्ट ऐसे था कि मेरे स्कूल कॉलेज में दे यूज्ड टू कॉल मी हुकुम का इक्का. अच्छा. यू नो आई वाज दिस, वो जोकर का कार्ड होता है ना, आई वाज दैट कार्ड कि भैया अच्छा इस कंपटीशन में सो एंड सो नहीं है, रुचा को भेज दो फर्स्ट लेके आएगी. लाइक लिटरली वो था. एंड सो आई टू एंजॉय इट. तो एक्टिंग वहां शुरू हो गई, जो समझा भी नहीं. बाकी सारी चीजें बाद में आई है. मतलब जैसे आपने अभी हम इनिशियली बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग जो बात कर रहे थे मॉडलिंग वगैरह, वो सब बहुत बाद में, डेंटिस्ट्री बहुत बाद में, सब कुछ बाद में. So modeling was the road to acting? Actually, honestly, I don't consider myself as a model because अगर आपने देखा like whatever work I have so many ads. I've done around and top brands 75-80 ads. Been picky choosy about it. लेकिन अगर आप देखोगे ना सारे script oriented like actor oriented ads है. They're not the model wale ads. So I've actually not been modeling. I know that advertising is considered as modeling, but yeah. You'll get cold. See, I love talking. तो उसके बीच में मतलब मैं break नहीं No, even I love listening and talking both. I think we have that thing. So you do not consider yourself model? Why? Yeah, because see, for me, you got a good face and body. That's good. Thanks to mom and dad genes. Yeah. Like no credit to me, but see, modeling is a different branch altogether. You know, I don't consider myself a model because I don't think I have worked in that direction as a model.
I have been an actor all my life, and because of my acting skills, when you're starting off and when you do not have somebody from the industry, तो आप कैसे काम कैसे ढूंढते हो? आप ऑडिशन करते हो. तो ज्यादा ऑडिशंस किस चीज के होते हैं? एड्स के होते हैं, है ना? तो So you worked ramp also? नो ओनली इन कॉलेज एंड ऑल. वहां मुझे सेंट्रल इंडिया लेवल पे बेस्ट वॉक, बेस्ट स्माइल वगैरह मिला था, या मिस पर्सनालिटी वगैरह मिला था, बट it's not at the professional level. So technically I'm not a model, I'm an actor. And Prince And all. So what all see, you've done in Prince? all of this comes like, you can't actually, it's like आपने पानी में थोड़ा सा लाल मिलाया और थोड़ा सा नीला मिलाया, अब उस पानी को मिला दिया, पर्पल हो गया, है ना? अब उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. वैसे ही है, प्रिंट्स हो गया, एड्स करना हुआ, या एक्टिंग हो गया. It's like when your portfolio is out there, when your pictures are there, correct, with the they'll call casting you guys, and yeah, तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर आता ही रहता है. Correct. So they'll call you and they'll be like, ma'am, would you be interested in this? If you like it, if you're excited about it, great. वैसे. So how did the first TV commercial happen, and what was the first paycheck? Paycheck on my TV commercial was recent, but I'll tell you about the first paycheck I got in my life. That is more exciting a story. It's not glamorous a story. Okay, so first TV commercial again through auditions. I started and a lot of people told me कि भैया आप है ना होप्स मत रखना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम मिलना इतना आसान नहीं है, प्लस आपके पास तो कोई जैक भी नहीं है, तो पहले 50 ऑडिशंस तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. ऐसे ठीक है. अब ऐसे हुआ नहीं था, बचपन से ऐसे था कि तुम हाथ लगाओ उसका लिख सोना होता है. I liked it. Yeah, I like the confidence. But seriously, नहीं, but ऐसे था, मतलब no pride or nothing about it, but genuinely ऐसे था. So I started auditioning और मेरे चौथे ऑडिशन पे मुझे मेरी पहली एड मिली. Okay, which was with Shujit Sarkar. It was for a brand Future Generali Insurance, and it was a very good script. Okay, it was a lovely script जहाँ पर एक बंदा है, वो बंदी से शादी करना चाह रहा है, तो वो शादी होने से पहले वाला जो फेज है ना, उसमें आके वो कहता है कि you know what would you like वाला, he has got her a घड़ी, and वो कहती है कि it's nice but दीदी को बुरा लगा तो, and he wants to please her, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, उनके लिए भी ला दूंगा, and वो दीदी चिल्लाती है और 20 दीदियां उसकी जो है जॉइंट फैमिली की सारी बाहर आती है, एंड दैट बॉयज, मतलब उसे तो समझता नहीं, मैं दूंगा मैं घड़ी. और वो पूरी घड़ी का वो बक्सा लेकर आता है और वो कहती है भैया को बुरा लगा तो. दैट वाज द एड. इट वाज अ वेरी क्यूट एड, एंड फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट ओवरनाइट शूट, फर्स्ट टाइम टू राजस्थान, मंडावा में हमने शूट किया था. सो अ लॉट ऑफ फर्स्ट. पहली बार कोई ऑटोग्राफ लेने आ रहा था, मैंने तो कट लिया. लाइक आई वाज सो कॉन्शियस. आई स्टिल रिमेम्बर ऑन दैट सेट मैंने पानी मांगा, तो आई सेड, तभी तो दादा टर्म भी नहीं पता थी, तो भैया पानी मिलेगा क्या, यू नो. आई वाज लाइक शाई, टिमिड एंड ऑल ऑफ दैट. अरे मैडम को पानी चाहिए. मुझे ऐसे लगा कि भाई मैंने किडनी नहीं मांग ली आपकी, पानी मांगा था. तो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड. यार आप खड़े रहते हो, पीछे से चेयर आती है, आप खड़े रहते हो, पीछे छाता आता है. सो इनिशियली इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है. जैसे सब काम कर रहे हैं, मैं वैसे ही काम कर रही हूँ, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर द जॉब दैट आई डू. कि अगर मैं फ्रेश नहीं दिखूंगी तो इतने लोगों की, वो जो 100-150 लोग अपने फिल्म पे काम करते हैं, उनकी मेहनत जाया जाएगी. सो इट इज बिकॉज, सो slowly I kind of learned all of this. Coming back to my check, the first check that I got, so okay, before starting on screen and after the theater, मैंने असिस्ट किया, ठीक है, बिकॉज मुझे टेक्निकलिटी सीखने थे. आप पूछ रहे थे ना कि हाउ आर यू सो अवेयर ऑफ कैमरा एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैंने डायरेक्शन टीम में असिस्ट किया. एंड वहां पर ये था कि यार आप मुझे नॉलेज दे रहे हो और मेरी वो जरूरत है. सो आई वाज नॉट पेड फॉर इट. इंटर्न थी मैं, ठीक है. आई वाज द जूनियर मोस्ट एडी. मैं काम बहुत करती थी, मैं 3 एडीज का काम करती थी, लेकिन आई वाज द जूनियर मोस्ट एडी वहां पे. और सडनली वन फाइन डे मैं एक्टर को स्क्रिप्ट देकर सेट पे जा रही थी. जो ईपी थे, जो प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उस शो के, उन्होंने आकर मुझे चेक दिया. उन्होंने कहा कि रुचा ये आपके लिए.
एंड ऐसे नहीं नहीं आपकी कुछ मतलब मिस्टेक हुई है बिकॉज मेरी पैसों की बात ही नहीं हुई है. ओके. एंड उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर ने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हम कवर करें. आई सेड ओके. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. आई वाज ऑल्सो प्लीज्ड कि यार खुद से दे दिया, सो स्वीट एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने वो चेक देखा और वो 2,000 रुपए का चेक था. Okay. That was your first That was my paycheck first paycheck as an AD. as an AD. Okay. And I felt very sad about it because it was only 2,000 rupees. Okay. अब मिल गया. बुरा लग रहा है बट चलो चेक तो मिला. पहला मेहनत की कमाई, फर्स्ट मेहनत की कमाई, ऑल ऑफ दैट. सो आई वेंट होम और मैंने मेरी मम्मी को चेक दिया. मम्मी और डैड लाइक पापा को चेक दिया. मैंने कहा कि दिस इज योर्स. एंड डायरेक्ट नहीं नहीं इट्स योर फर्स्ट चेक, यू सी व्हाट यू वांट टू डू विद इट एंड ऑल ऑफ दैट. अब मैंने उसे किताब में रखा, मैं भूल गई. और 15 दिन बाद जब मैं वो किताब पढ़ने गई मुझे चेक दिखा. मैंने कहा अरे इससे तो डिपॉजिट ही नहीं किया जो भी. तो उसे डिपॉजिट किया और वो बाउंस हो गया. ओह. सो ये मेरे चेक की पहली कहानी है कि पहले तो चेक मांगा नहीं था, दूसरा तो चेक जिस अमाउंट का आया और तीसरा तो वो चेक बाउंस हो गया. Then you got cash or you got No. any refund? I didn't go to them. I didn't ask for it. Okay. I had not asked for it in the first place. I just kept that check as a memory. It was almost like शुरुआत की. अच्छा इस फील्ड में ना कुछ भी हो सकता है. तो रुचा और क्या क्या हिडन टैलेंट्स हैं आप में? हिडन टैलेंट्स. ओके. आप पहले मुझे बताइए कि आपको कौन से टैलेंट्स पता है? You like traveling and I've seen that Insta page of yours जिसमें आपने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक किए हैं. Photography. Yeah. Okay. So yes, of course, acting is something that is there. Dancing is something that is there. ये दोनों करने में बड़ा मजा आता है. फिर थोड़ा less known is what you just spoke about, photography. Photography मुझे ना दुनिया फ्रेम्स में दिखती है. मुझे दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है, फ्रेम्स में दिखती है और मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सो इफ देयर इज समथिंग दैट्स हैपनिंग आई क्विकली क्लिक इट एंड यू आर एक्चुअली Capture it. करेक्ट. एंड आप ना उसे वही फ्रीज कर रहे हो. बस वो मोमेंट हमेशा के लिए रह गई. वो अपने क्या होता है ना, एज टाइम पासेस एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट स्मॉल लिटिल डिटेल्स. तो इन तस्वीरों में वो डिटेल्स रह जाते हैं. Wow. So that is why I really like photography. Apart from that, another less known talent I would say is singing, voicing. Voice is something that I started recently, and I also like to paint. I really like interiors karna. I am crazy about interiors karna. What else? Yeah. So you're a package of an artist. Yes. And I also like to write. So I write मतलब poetry करना अच्छा लगता है. मेरे grandfather, father, brother सब. That is also an art, ना? Yes, it is. So basically जितने ways से मैं खुद को express कर पाऊँ वो मैं करती हूँ. Like I like to express. So you basically like to express and explore. Yes. Like full power. So do you follow any fashion trend या फिर आप अपना खुद का fashion trend बनाती हैं या mix and match करती हैं? Because you're a tomboy as you told me. Yeah. नहीं I don't follow any fashion trends. जो अपने stylist है वो जो trends follow करते हैं वो needless से हम पहनते हैं वगैरह. लेकिन in personal life I think I'm very careless. Like careless is a wrong word. I'm very carefree. Carefree is the right word. So I like to wear comfortable clothes. I like to wear कपड़े जो मुझे खुशी देते हैं. किसी को प्लीज नहीं करना मुझे. मतलब किसी के लिए मुझे अच्छा दिखने वाला सिस्टम नहीं है मेरा. वो चीज पहन के मुझे मैं लगूं. फिर वो कुछ भी हो सकता है. मतलब मैं बिल्कुल लाइक साड़ी से लेके शॉर्ट्स और लूज टी शर्ट तक पूरी रेंज है अपनी. सो इट्स नॉट अ पर्टिकुलर वे कि मैं यही पहनती हूँ और ये नहीं पहनती हूँ. बस मुझे मजा आना चाहिए पहन के, मुझे अच्छा सा लगना चाहिए. So that song is है ना, सजना है मुझे सजना के लिए. तो मुझे सजना है खुद के लिए. Typical tomboy attitude. Correct. Entertainment industry में और बाहर के कुछ लोगों का भी ऐसा परसेप्शन रहता है. इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा परसेप्शन रहता है एक्टर्स के बारे में कि वो थोड़े से डम होते हैं या उनके लेस ब्रेज होते हैं. इस पे आपका क्या टेक है? They're not well educated, not well,
Okay, worst with things. ये आई थिंक सबसे इनकरेक्ट परसेप्शन है. But ये है ना, you must have noticed. I haven't, but I know of it. हाँ. मतलब thankfully I think I am surrounded by the right people, तो उन्हें नहीं लगता. And the younger generation. हाँ, उन्हें नहीं लगता कि एक्टर्स डम होते हैं. एक्टर्स डम नहीं हो सकते. यू नो, एक्टिंग जॉब इतना डिमांड करता है आपसे. सो ओके, थिंक अबाउट इट. आप सेट पे जाते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल स्किल्स दैट यू नीड. ठीक है, बहुत सारे फ्रंट्स पे आपका कोई मतलब मेकअप ठीक है ना, बाल ठीक है ना, ये ठीक है ना, कपड़े ठीक है ना, ऑल ऑफ दैट. उसके बाद आपको डायरेक्टर एक डायरेक्शन दे रहे, आपको डीओपी जो कैमरामैन है वो कह रहे कि अच्छा ये वाला लाइन ना इस वाली लाइन पे आपको हिट करना है. आपके को एक्टर का एक अपना तरीका है, वो अलग चल रहा है. ये सब जब हो रहा है, साउंड मतलब आपके साउंड लेवल्स आपको ठीक से मेंटेन करने, प्रोजेक्शंस, ये वो जो भी है, ये सब आप ध्यान रखते हुए आपको उस पल में खो जाना है और वो इमोशन ट्रूथफुली करना है. Someone who is not intelligent enough to handle all of this cannot Deliver. Yeah. So I don't know why people think that actors are not intelligent. अगर आप actually आज के टॉप के एक्टर्स लो, they all are very intelligent. आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, they all are very intelligent. Without being intelligent, you will not be there. You cannot be there. There's too much to handle. So yeah, and about education, I think it has also a lot to do with where you come from. जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो I come from a fully academic family. मतलब खानदान of doctors. हम लोग पापा डॉक्टर, मम्मी पीएचडी डॉक्टरेट है, भैया इंजीनियर एमबीए है, भाभी एमबीए है. मेरी लाइक other side of my family again doctors, or my grandfather has been an engineer, the other one was a bank manager and all of that. My nani was BA for that time. So I come from a very academically driven family. तो मैं भी डेंटिस्ट हूँ. मतलब needless to say वो पढ़ाई is like a part of my life. But वही है. So that's because I come from a academically driven family. अब कोई और होगा जिनकी पूरी आर्ट वाली फैमिली होगी, जिनके घर पे बचपन से मूवीज के डिस्कशंस होते हैं और जो भी है, तो वो उसमें like they would have learnt that language. That doesn't mean they're not educated or they're not, उनके पास डिग्री नहीं होगी, बट ये नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं होगा. यू नो, सो आई थिंक it's unfair to say कि actors are not intelligent or actors are some families, you know, they believe कि हाँ पढ़ने में अच्छी नहीं हो गई या नहीं होगा तो चलो एक्टिंग के फील्ड में चला गया, which is very unfortunate. but basically acting के फील्ड की ना एक इमेज है कि हाँ क्या ही है, सुंदर दिखना है, जाके कैमरा के सामने कुछ भी बोल देना है, खड़े रहना है. It's not that easy, It's not isn't it? that easy. तो रुचा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से मॉडल्स के करियर पर, एक्टर्स के करियर पर क्या इफेक्ट पड़ा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज इन इंस्टा, AI एंड ऑल. या ओके, AI का आंसर अलग हो जाएगा एंड सोशल मीडिया का अलग होगा. दोनों आई वांट टू नो. ओके, सो AI से थैंकफुली एक्टर्स रिप्लेस नहीं हो सकते थैंकफुली. लेकिन जैसे हम VO वगैरह करते हैं ना, वॉइस ओवर में AI काफी like AI से they are getting good looking girls, good looking boys also nowadays. No, of course. So basically कोई अगर मेरी इमेज लेगा और उसे AI में प्रोसेस करेगा तो मेरा और सुंदर वर्जन मिलेगा. बट एक नया वर्जन भी रहता है. Correct. एक क्या, बहुत सारे. करेक्ट. लेकिन बेसिकली एज एन एक्टर मैं जो दिल आपके सामने लाकर रखती हूँ, इमोशन, वो कहाँ से लाओगे? AI जितना उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके इस मोमेंट में ये चीज ला सकता है. बट जो चीज मैं खुद नहीं जानती हूँ, जो मैं कैमरा के सामने लाती हूँ, वो AI भी नहीं ला सकता ना, क्योंकि वो तो कहीं तो वो इंस्टिंक्ट से, इम्पल्स से, नॉट डिसाइडेड वे से बाहर आ रहा है. सो वो टेंशन नहीं है, वो AI का थ्रेट नहीं है. इनफैक्ट AI शुड बी अ टूल जो टू बेटर आवरसेल्व्स हमने यूज करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है. एंड सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? सोशल मीडिया का मेजर इम्पैक्ट है एक्टर्स लाइफ पे. जैसे कि आई एम वेरी सोशल इन टर्म्स ऑफ मेरे पर्सनल इक्वेशंस. ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी, मैं बड़ा मजा आएगा, पर वो हर चीज रिकॉर्ड करने वालों में से नहीं हूँ.
अब जब मैं हर चीज बाहर नहीं डालती तो फिर तुम्हारे उतने फॉलोअर्स नहीं होते। और आज ऐसा दौर है अनफॉर्चुनेटली, रोज रील डालनी होती है। करेक्ट। सो अगर आपने आपके फॉलोअर्स इनफ लेवल तक नहीं है तो आपको काम नहीं मिलता, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब जिनके फॉलोअर्स बहुत है उन्हें काम मिले, बिल्कुल मिले, बट जिनमें वो टैलेंट है और जिन्होंने उस आर्ट और क्राफ्ट को अपनी जिंदगी दी है, उनको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नहीं है, बिकॉज उनकी हैबिट नहीं है कि रोज वो कुछ ना कुछ पोस्ट करेक्ट। सो दैट इज समथिंग जहां पर थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो उससे बहुत अफेक्ट हुआ है। तो आपको कंपटीशन रहता है कि यू नो द अदर मॉडल्स एंड अदर एक्टर्स इतना पोस्ट करे और मैं नहीं कर रही हूँ? ऑनेस्टली कंटिन्यूअस कंपटीशन है, इट्स जस्ट वेदर यू वांट टू केटर टू इट और नॉट। मतलब अब समझिए मेरे बाजू में अगर हमारे बीच पानी पूरी खाने की कंपटीशन लग गई, ठीक है, तो आपने समझ लीजिए 15 पानी पूरी खाए, आपने 10 खाए, अब मुझसे 4 या 5 ही जा रहे हैं। अब ये तो कंटिन्यूअस कंपटीशन है ही ना, हर चीज में है। कितना केटर करोगे, पेट भर गया रुक जाओ। तो I don't worry. Deal with it. How many posts do you share, like very on weekly basis or very monthly basis? I don't have a structure to it. Ideally I should. I think मेरा सोशल मीडिया गेम थोड़ा बेटर हुआ है टू व्हेन आई स्टार्टेड। तो मैं साल में एक आध पोस्ट वगैरह करती थी तो वहां से आई थिंक नाउ आई एम अ लिटिल बेटर। मेरी टीम ने तो गिव अप कर दिया। उन्होंने पहले वो कहती थी कि मैम पोस्ट करो, मैम पोस्ट करो। अभी दे आर लाइक करना है तो करो, आप नहीं करना कोई बात नहीं वाला। आई एम नॉट ग्रेट एट द गेम बट आई वुड वांट टू गेट बेटर एट। But do you feel like that competition or you are not bothered about? I'm not bothered. You don't care? I don't no, not that I don't care because मेरा काम अफेक्ट होता है, of course I care, but I'm not bothered by it. I don't judge my level of work based on the social media presence or whatever. So you are confident about I'm better than that. yourself that you're above it. No, it's not about being above it. Above the competition and all these silly things. I am not somebody who is very I don't compare much. मतलब मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीती हूँ और आप आपकी जिंदगी आपके तरीके से जियो, एंड दोनों अच्छा है, दोनों बढ़िया है। What is that difference or what are those differences, you know, like you feel कि एक मॉडल और एक एक्टर में होते हैं, एक्टिंग के फील्ड में और मॉडलिंग के फील्ड में क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं, और इट्स जस्ट एन आर्ट, यू नो? नहीं, सो ऑनेस्टली यार आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्योंकि मैंने मॉडलिंग की दुनिया नहीं देखी है, मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग देखा है। सो अगर मैं एडवर्टाइजिंग और फिल्म्स, वेब शोज, प्रिंट शूट्स एंड ऑल, हाँ, बट बेसिकली अगेन दैट कम्स इन लाइक एडवर्टाइजिंग का सब टाइप हो गया वो। तो वहां पर ये है कि आप जैसे दिखते हो, आप जैसे कैमरा फेस करते हो और आपकी आंखों के थ्रू क्या पोर्ट्रे करते हो, दैट इज व्हाट इज द थिंग। एज एन एक्टर आपको उस सीन को होल्ड करना है, आपको जो देख रहा है उसे बिलीव कराना है कि ये वो लड़की है, मैं नहीं हूँ, ये वो लड़की, वो कैरेक्टर है। सो दोनों के फॉर्मेट्स बहुत अलग है। अगेन मॉडलिंग और एक्टिंग को कंपेयर नहीं कर सकती, प्रॉपर मॉडलिंग मैंने नहीं किया है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में 30 सेकंड में कहानी कहते हो और वेब सीरीज में 10 एपिसोड्स में कहानी कहते हो। तो फॉर्मेट आपका स्ट्रेच होते जाता है, मोमेंट्स और आप डालते जाते हो, लेयरिंग और करते जाते हो। दैट इज द मेन डिफरेंस। दिस इज लाइक क्रिस्प एंड दिस इज लाइक यू आर लिविंग इट। So after the advertisements and all that you had done, the first project as a web series or film या short film, वो कौन सा था और कैसे हुआ? So it was not after. Basically, I started advertising. Parallelly. हाँ, parallelly it started. The first film that I started shooting for was Under the Same Sun नाम की फिल्म थी। एक कनेडियन डायरेक्टर थी, उन्होंने लाइक राजस्थानी मंगानिया लड़की का कैरेक्टर था मेरा। अगेन लाइक द पार्ट विच एक्चुअली चेंजेस अ टेररिस्ट, की भाई उसका मन चेंज करती है कि आप ब्लास्ट मत करो वाला, लाइक दैट वाज द फिल्म। बट फर्स्ट रिलीज हुई जो मेरी फिल्म थी वो चिल्ड्रन ऑफ वॉर नाम की फिल्म थी, जो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस पे थी। उसमें मैं बांग्लादेशी रेफ्यूजी लड़की थी। सो वो भी ऑडिशन के थ्रू ही हुआ। बहुत सारे ऑडिशंस दिए मैंने अंडर द सेम सन के लिए 4 ऑडिशंस दिए और मैंने चिल्ड्रन ऑफ वॉर के लिए 2 ऑडिशंस दिए।
तो मतलब हाँ उसी एंड क्रिमिनल जस्टिस, हाउ डिड इट हैपन? वो मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी. That was much later. Criminal Justice was in 2018. Criminal Justice का interesting है actually. I went for the test, audition पे गई और उन्होंने कहा कि अच्छा बट रुचा वो ना थोड़ी सी उम्र में बड़ी है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, और वो प्रेग्नेंट है इन द शो. आई सेड ओके. और जो सेंट्रल पार्ट है उसकी बहन है. मैंने कहा हमारी इंडस्ट्री में ये तीनों स्ट्रिक्ट नोज है. अगर आप हीरोइन का काम करना चाहते हो लीड एक्ट्रेस के स्पेस में, तो आप बहन का पार्ट करना मतलब सुसाइडल माना जाता है. प्रेग्नेंट खत्म, एंड जो सेंट्रल पार्ट है उससे उम्र में बड़ी. दी एंड. इट्स लाइक एंडिंग योर करियर बनने से पहले खराब कर हाँ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई सेड यार, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी. मुझे उस कैरेक्टर में जो ट्रूथ था ना, अवनी नाम था कैरेक्टर का, वो बहुत अच्छा लगा. तो मैंने बढ़िया टेस्ट दिया. घर आई, मम्मी बोली क्यों कर रही है. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी वर लाइक व्हाई आर यू डूइंग इट, डोंट डू इट. मतलब जो लीड वाले पार्ट्स कर रही है वो कट जाएंगे. मैंने कहा कि यार कुछ तो सही है इसमें, ये करने का मन कर रहा है. अब मन कर रहा है तो मन कर रहा है, कर लिया. तो उसके लिए मैंने लिटरली 9 किलो वजन बढ़ाया, क्योंकि ऐसी तो प्रेग्नेंट लग नहीं सकती मैं. तो थोड़ी सी चबी सी, थोड़ी सी यू नो बॉडी लैंग्वेज चेंज करके. एंड उसके फाइट्स बहुत अलग है एक्चुअली. पता है क्या, द रीजन आई स्टार्टेड एक्टिंग वाज रुचा करके मेरी एक जिंदगी है, उसका एक दायरा है कि ठीक है रुचा ये करते हैं, रुचा की लाइफ में ये है, रुचा को याद है whatever. जब मैं एज एन एक्टर जाती हूँ तो मैं अवनी के लिए अलग लाइफ जीती हूँ, आलिया के लिए अलग लाइफ जीती हूँ, कौसर के लिए अलग लाइफ जीती हूँ, यू नो बंदों के लिए अलग लाइफ जीती हूँ. इतना स्पेक्ट्रम एक जिंदगी में कौन देता है. तो मेरी वो एक्साइटमेंट है. तो दैट इज हाउ क्रिमिनल जस्टिस हैपेंड एंड इट वाज अमेजिंग. मतलब क्रिमिनल जस्टिस के दौरान इन वन ऑफ द क्या बोलते मिड शूट एक पार्टी थी, हॉटस्टार पे है वो, हॉटस्टार स्पेशल उनकी पार्टी थी. उनकी थी, बीबीसी की थी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक हॉटस्टार की थी. एंड वहां पर तीशू सर जो डायरेक्ट कर रहे थे और विशाल जो डायरेक्ट कर रहे थे, वो दोनों थे. और मैं लेट आई क्योंकि मैं शूट खत्म करके आई थी. तो मैं जब पार्टी में एंटर हुई, तीशू सर बिल्कुल सामने खड़े थे और उन्होंने कहा ये लड़की तुम इधर आओ, ये लड़की इधर आओ. तो आई सेड हाँ सर, तिग्मांशु धुलिया. और उन्होंने कहा कि ये लड़की ना जादू है. बोलते कि मैंने ना बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है. सर बोले इरफान खान और यू नो लाइक बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ, इंडिया के बेस्ट एक्टर्स के साथ. बोलते तू उस लीग में है, कहाँ से आई है तू, मतलब इससे पहले मैंने तेरा काम कैसे नहीं देखा है वगैरह. एंड ही सेड इतना महीन परफॉर्मेंस है, मतलब एडिट टेबल पे मन करता है इसको देखते रहो यार, इसको काटा ही नहीं जाता. एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड. आई सेड सर मत बस करो, थैंक यू, लाइक यू नो. सो जो चीज शायद मैं कभी करती नहीं, तो वो चीज मैं कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने क्रिमिनल जस्टिस किया. एंड उसमें मुझे कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस आए हैं ना, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे. तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं उनको आप कैसे नेविगेट करती हैं? क्या आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है? मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं, सपोर्ट आर्मी है. ओके, टेल अस. या लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स आर ऑलवेज विद मी. तो जो भी चैलेंजेस आते हैं वो हैंडल करने के लिए पूरा का पूरा, मतलब I have an army. So you share everything? I share everything with my family and my friends. I can't do without them. I am very very lucky कि मुझे ऐसे लोग मिले. Challenges यार बहुत है ना, मतलब the nature of our business is कि कभी काम होगा कभी काम नहीं होगा. हाँ, मतलब it is a stressful job. जब आप शूट कर रहे हो तो देर आर डेज आप 22 घंटे भी शूट कर लेते हो. यू नो देर आर डेज जहाँ आपको इंजरी हुई है, आप नॉर्मल, मतलब समझिए मैं यहाँ से वहां उठकर जाने के स्टेट में नहीं हूँ, पर मैं एक्शन सीक्वेंस शूट कर रही हूँ, मैं डांस शूट कर रही हूँ. इट इज अ वेरी
इनऑर्गेनिक अननेचुरल जॉब. मतलब अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे ठहाके लगा के हंसना है, अगर मैं खुश हूँ तो मुझे एक क्यू पे रोना है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो it is a difficult job, but it is something that I really enjoy. That's why I do it, needless to say. I'm very lucky to have the right people with me throughout this journey to deal with it. किसी कॉज की अवेयरनेस के लिए कोई प्रोजेक्ट किया है या करना चाहेंगी? अभी रिसेंटली एक फिल्म की है, नॉट टुडे नाम है उसका, जिसके लिए मुझे स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था कनाडा में. वो जो फिल्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉज के लिए है. वो सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में है. I just saw. You did? It's there, yeah. It's on YouTube. Yes, it's on YouTube. उसका नाम नॉट टुडे है, और उसमें मैंने एक किरदार निभाया है जो सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर है. और 24 साल की बंदी है, उसका पहला दिन है, और वो जान लगा देती है उस बंदे को बचाने के लिए. So I think it is a very very important subject in today's times. क्योंकि mental health issues बहुत surface हो रहे हैं. I'm pretty sure पहले भी होंगे, पर अब उनके बारे में बात हो रही है. So unknowingly अच्छे सब्जेक्ट पे वो काम हो गया. एक और फिल्म मैंने की थी जो डिमेंशिया के बारे में थी. अगेन बहुत लोगों को डिमेंशिया के बारे में काफी कुछ नहीं पता. सो आई थिंक काम में कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते रहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हमारे थ्रू होते रहेंगे. बट डेलिब्रेट सिर्फ वही करना है ऐसा कोई इरादा नहीं है, दोनों करना है. So you believe in stalking your boyfriend or your man? No. And what is your take on people who stalk on their partners? No. So I think people who you love, your partner, or why would you stalk them? They will just, so जो चीज इंस्टा पे जाने वाली है, फेसबुक पे, उससे पहले तो मेरे पास ही आती है ना. आई डोंट हैव टू स्टॉक एंड आई डोंट हैव टू सी. आई मीन लाइक जैसे कुछ लिखा या कुछ पोस्ट किया तो उसके पीछे कुछ नहीं यार, नहीं करती हूँ मैं. के पीछे मैं ना एक्चुअली के पीछे सब टेक्स्ट नहीं ऑनेस्टली नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन वेरी वेरी मस्त वाला कम्युनिकेशन. जो लगता है बोलो, जो है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज हमने कुछ अच्छा शेयर किया तो पहले जाके सारे अपडेट्स मिलने ही है. तो वो इंस्टा पर से जब हमारा वीडियो आएगा तब पता चलेगा वाला सीन नहीं है. वैसे ही मेरा हर एक लाइक मेरे सारे इक्वेशंस आर वेरी, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड बहुत अच्छे कम्युनिकेशन वाले. तो स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही सब देख लिया होता है, पहले ही सब पता होता है. वो तो लोगों के लिए है. एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है एक्स बॉयफ्रेंड. आई थिंक ये आंसर बहुत कम लोग दे पाएंगे. people they stalk on their exes. Yeah, but I don't have an ex. Okay. So yeah. So I am saved from and that your question. competitions and all, you stalk them? No, I don't stalk them. So I don't like, I feel what social media could do is आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है. ठीक है, मैं बहुत सिक्योर इंसान हूँ और मैं कंपैरिजन में नहीं जीती हूँ. तो जो मेरी कंपटीशन है, सो टू से, वो उनके लिए जो उन्हें जो मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं. मुझे जो मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ. एंड यू गेट टू नो जो आपको स्टॉक करते हैं उनके बारे में? नहीं, आई डोंट गेट टू नो अनलेस पीपल हैरेस यू. नो एट टाइम्स आप जैसे कुछ लोग होते हैं आपका सारा स्टेटस देख रहे हैं, आप फेसबुक में कुछ स्टेटस डाल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, आप इंस्टा पे डाल रहे हैं, तो वो आपको मतलब हर स्टेटस को देख रहे हैं. इट मींस दे आर स्टॉकिंग यू, राइट? करेक्ट, बट आई डोंट नो. आई डोंट. So you do not get to know. You don't check the list. care honestly. I've never, trust me, I have never opened and seen कि किसने मेरा स्टेटस देखा है. कभी नहीं देखा है. इनफैक्ट मुझे probably 6 months back पता चला कि ऐसे देख सकते हो. I didn't even know about it. So you get to know, कौन आपको स्टॉक कर रहा है. नहीं, एक्चुअली इट्स ओके. मतलब अगर कोई कर रहा है, ग्रेट, गुड फॉर मी, योर इंस्पिरेशन टू देम. करेक्ट. सो मैं तो चाहूंगी कि यार पूरी कंट्री मुझे स्टॉक करे नहीं, लेकिन मुझ में इंटरेस्टेड हो, मुझे देखे, एंड हाँ मेरे बारे में जानना चाहे. क्यों नहीं, बिल्कुल चाहूंगी मैं. लेकिन मैं नहीं देखती कौन मुझे देख रहा है. मैं किसी मेरे पैरेलल एक्टर्स
को नहीं देखती हूँ कि अच्छा उसने क्या किया, ओ मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिला, ये सारे आई डोंट थिंक आई हैव दैट बोन इन मी. वो तो जो मेरी किट्टी में वो मुझे मिलेगा इज द एटीट्यूड. हाँ बिल्कुल 100%. So you believe in luck? I believe in luck. Destiny? I do believe in luck. I do believe in destiny. This entire acting game has a lot to do with luck, has a lot to do with destiny. And हाँ यार, और बहुत 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 सारा लक चाहिए मुझे लाइफ में ताकि मैं आप सब तक बहुत सारे काम के साथ पहुंचूं. स्पिरिचुअल हैं आप? हाँ. सो प्रैक्टिस करती हूँ, not as much as a lot of people do, but it so happens कि रैंडम लोग आके मुझसे कहते हैं कि वो एक स्पिरिचुअलिटी का ट्रायंगल होता है और मैं कहीं तो उसके ऊपर कहीं तो हूँ. इतना मुझे पता नहीं, बट हाँ आजकल मैं आई हैव स्टार्टेड डूइंग सूर्य क्रिया, which is probably how do you do it? Oh, you have to learn it. Like it's like a proper thing. Minimum 45 minutes लगते हैं. So there are certain exercises, breathing, and it's like a variation of Surya Namaskar. Okay. And it's because I do Surya Namaskar. You do, right? Yeah. So it's amazing. It's amazing. I have recently started it, and I'm already seeing very interesting changes and very subtle, interesting changes. You feel so positive. Yes, you do. Yeah, I think वो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा फोटे है, पॉजिटिव रहना. Yeah, that shows in your face. Yeah. So I think I'm blessed. And what is your go-to source? Go-to source? Source for what? Like आप कहीं पे अटकती हैं, कुछ रेफर करना है तो किसे और हाँ, तो मेरा वो जैसे केबीसी में होता है ना कि आप किसे कॉल करोगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज ना, वैसे आई कॉल डिफरेंट पीपल और आई मीट डिफरेंट पीपल, आई टॉक अबाउट डिफरेंट स्टफ विद डिफरेंट पीपल. सो एक सिंगल गो टू सोर्स नहीं पकड़ सकती, बट या माई पार्टनर, माई मदर, एक्चुअली माई एंटायर इंटरनेट ऑल्सो एट टाइम्स. अच्छा, वैसे गो टू सोर्स अगर आप कह रहे हो, ओके, we have to divide this question. Go to source for information, like information or anything, or for like fun, जैसे आप अकेली हैं और आपको कोई है नहीं बात करने के लिए, तो आप किसे रेफर करेंगे? तो इंटरनेट ऑब्वियसली, नीडलेस टू से. अगर खुशी के लिए या खुद को फील गुड कराने के लिए गो टू सोर्स है तो मूवीज. आई एम अ ह्यूज मूवी बफ, लाइक अ ह्यूज मूवी बफ. मुझे आनंद मूवी बहुत अच्छा लगता है. आपने देखी है आनंद? हाँ, सबने देखी है. हाँ, तो आनंद फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुन्ना भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो दीज आर माय एंड फील गुड वाले. इसमें फिर अपनी सारी कुछ होता है ऐसे लेके, ये जवानी है दीवानी से लेके उस कैटेगरी की फिल्में आर दीज फील गुड वाले स्पेस में जब देखती हूँ. गो टू डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम सीइंग, सिचुएशन एंड द स्टफ यू आर गोइंग टू. यस. एंड व्हाट इज दैट वन बैड हैबिट ऑफ योर्स? आपकी कोई ऐसी बुरी आदत जो आप चेंज करना चाहें? फोन addiction? No, not addicted. I think as compared to people around me, I think मैं उतना फोन नहीं यूज करती. लेकिन अगर मेरे लाइफ से फोन ले जाए कोई, तो सडनली मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में ना इतना ज्यादा वक्त होगा क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली किसी ना किसी से बात कर रही हूँ, किसी ना किसी को केटर कर रही हूँ. मतलब किसी का कोई डिजाइन बना के दे रही हूँ, किसी से कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उनके इश्यूज को सॉल्व कर रही हूँ. कहीं तो काम की कुछ बात चल रही है. otherwise also? Oh my God, I have counseled people at screenings, like very random. You've done strangers also, na? Counseling? Yeah. You just told me sometime back, rickshaw wala you met. नहीं, that was the general बात है. But I have actually, so there was, इस बारे में मैंने actually बात नहीं की है. एक बार ऐसी travel कर रही थी और hostel में रह रही थी. तो एक बंदा आया रूम में और रूम की एनर्जी बदल गई, बहुत नेगेटिव हो गई. तो I started thinking, you feel that? Yeah, oh God, even God. I do. Major ना फील हो जाता है ना नेगेटिव एनर्जी इमीडिएटली, किसी में हो तो इमीडिएटली. सो मैंने इग्नोर किया. मैंने कहा चलो ठीक है, नन ऑफ माय बिजनेस. बाद में मैं घर पे बात कर रही थी और मैंने कहा अब मैं खाना खाने जाऊंगी ये वो, तो उन्होंने सुन लिया. तो उन्होंने पूछा कि मैं आपके साथ आ सकता हूँ क्या. अब उस एनर्जी के साथ तो भाई मन नहीं किया कि मैं कहूँ कि आप आओ, बट
आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे ना कहने में दिक्कत होती है. सो मैंने कहा हाँ ठीक है अगर आपको लगता है, बट अब टालू कैसे ना. हाँ. तो मैंने कहा कि एक पौना घंटा है मुझे जाने में. हाँ कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा. अच्छा, अब वो मेरे साथ आए और मैंने एक बढ़िया खाने की जगह ढूंढी थी. दिस वाज इन अमृतसर. और हम वहां गए. बहुत जोरों की बरसात हो रही थी, झमाझम बारिश, सर्दी का मौसम सब. हम गए, वहां पहुंचे और ये बंदा है जो सैड ही है, sulky कर रहा है. और मैं हो गई बोर. मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मैं तो छुट्टी मनाने आई हूँ, आप जो भी आपका सोल सर्चिंग चल रहा होगा. तो एक पॉइंट पे ना मैंने उनसे कहा कि दोस्त अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो बात करो. ऐसे मैं होर्डिंग्स नहीं लगाऊंगी, अगर कुछ हेल्प कर पाई तो कर दूंगी, नहीं कर पाई तो वैसे भी नहीं कर पा रही हूँ. मतलब जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. तो फिर उसने that's the best way, you know, just get it out of your system, dude. सो ऐसे जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. लाइक हमारे यहाँ ऐसे होता है, आपके यहाँ तो ऐसे होता है वगैरह. ऐसे बोल दे यार, मतलब seriously. And then he started talking and he spoke and he spoke and he spoke. He cried obviously, and then there were just two things that I could tell him at that point, which I did. And I told him, I said, you go to the dorm, I will not come, टेक योर टाइम, एंड इफ यू नीड समथिंग जस्ट नो दैट आई एम देयर. और मैं नीचे रुक गई, रिसेप्शन पे रुक गई. मैं वहां गई नहीं. रिसेप्शन पे मेरा एक दोस्त बना था, उसके बाद हम गाने वाने सुन रहे थे. फिर ऊपर जाकर मैंने चेक किया, आई यू ओके. ही सेड आई एम ओके. रो रहा था वो बंदा. ठीक है. Attention seeker maybe? No. And then the next morning when I woke up, that dorm had no negative energy. Believe me, like suddenly it felt like a nice bright room. और because वो negative energies उनके system से निकल गई. और फिर जब मतलब वो जा रहे थे, he was leaving for स्पीति जाने वाले थे वो. उन्होंने मुझसे कहा कि listen, I'm going to write about you in my diary. And I asked him, I said, what? He said, just good vibes. हाँ sweet. And he said and उस बंदे ने पूरा इंडिया किया था in order to find शांति. And he said जो चीज मुझे कहीं नहीं मिली और मेरी ट्रिप में खत्म करने वाला था स्पीति में, सेकंड लास्ट स्टॉप था ये. He said I suddenly found peace. So maybe God had sent you as an angel. So I totally believe that good counseling without giving too much gyan works really well. It does. So, yeah. So you talk to strangers, you said. तो आप strangers से बात करने से पहले क्या वो connect ढूंढती हैं? क्या आपको feel होता है कि आप किसी stranger से बात करती हैं? बिल्कुल. मैं I don't decide that you know what I want to talk to this person. ऐसा नहीं होता. It's just the energy. ऐसे ही मतलब मिले, अच्छा लगा, बात कर ली. नहीं लगा, नहीं मन किया, नहीं की बात. आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 घंटे तक आपने किसी से मैंने so much of energy you had. चाय वाले भैया के साथ बनारस में वहाँ लोग ना बहुत बतौले हैं. मुझे लगता है पिछले जन्म में मैं भी बनारस से होंगी ना. तो उस वक्त लाइक बनारस में यू गो एंड मीट एनीबडी. सब फुर्सत में है, वेरी अनलाइक मुंबई. सब फुर्सत में, सब अपने पेस पे है, किसी को कोई जल्दी नहीं है कुछ करने की. वहां मैंने लिटरली सुबह उठकर जो नीचे हम टपरी पे चाय पीने जाते हैं ना, उनसे मैंने कितने घंटों बातें की है, मैं आपको बता नहीं सकती. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, आपके घर पे कौन है, मेरे घर पे कौन है. लंबा कॉन्वर्सेशन. So ऐसे सब मैं बहुत करती हूँ. So Rucha, I've gathered that you love talking and Yes, to strangers also. So any episode like you know कुछ interesting हुआ हो जो memorable रह गया हो? ओह बहुत सारे हैं. मैं बहुत भटकती हूँ और बहुत बात करती हूँ, तो यू कैन इमेजिन कि बहुत इंसिडेंट्स है. एक वंस आई वाज इन प्राग. ठीक है, वहाँ आउटस्कर्ट्स पे बस से कहीं जा रही थी और मेरे बगल में एक जेंटलमैन बैठे थे, सूट वूट पहन के एकदम यू नो पॉलिश्ड नाइस, एंड ही वाज हमिंग समथिंग. तो आई वाज वेरी क्यूरियस. आई सेड कुछ तो गुनगुना रहे. 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए. तो मैंने उनसे पूछा कि सर व्हाट आर यू हमिंग. एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी लाइक एंड उन्होंने ईयरफोन मुझे दिया उनका. तो ईयरफोन जब लगाया बैटरी गई. ऐसे नथिंग. He said, opera. Now he doesn't know my language. I don't know his language. We are in a journey together. I said, opera. He said, sing opera. I said, you sing. Yeah, performance. So he was going for his performance. He was a singer.
and I wanted to listen to it. I'm very greedy. Hugo is a greedy pup, so I told him, I said, "आप गाओगे?" Like action से. तो he said, "यहाँ." I said, "हाँ." बस में. हाँ. Opera. हाँ. He actually looked at my face. He said, "Okay." And he sang that opera in my ears in a bus, and then I joined him and we had a blast. Like, it's one of my fond memories. He gave me his card and he's like, "Keep in touch, you sing though, you should sing," and all of that happened. So yeah, it's amazing. Talking is And what is your take on people who judge women, you know, जो बोलते हैं अरे बहुत talkative है, बहुत outspoken है, बहुत outgoing है, किसी से भी बात कर लेती है. People they judge ना. तो उन पे आपका क्या take है? I don't care. You don't care. I don't care. Should I be think मैं अच्छी बातें करती हूँ, तो thankfully reactions भी अच्छे से मिलते हैं. तो I have not been subjected to कि मतलब वो होता है ना, तुम कितनी बात करती हो यार, लेकिन अच्छी बात करती हो, तो ठीक है. हाँ, energy exchange हो रही है ना. As long as सामने वाले को मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, लाइफ जिंगल आला. Like True. it's okay. रुचा, जब आप किसी महफिल में जाती हैं, किसी गेट टुगेदर में जाती हैं या स्क्रीनिंग या बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और आपको फील हो जाता है कि किसी की आंखों से कि उससे आप पे क्रश है, इन्फैचुएशन है आपके प्रति, तो कैसे डील करते हैं? इग्नोर करती हैं या फेस करती हैं? नहीं फेस करती हूँ. So How? basically see, as a girl we have that sense, right? Yeah. समझ आता है कि somebody is kind of liking you, is feeling good about you being around and all of that. वो आंखों से जो टॉम एंड जेरी वाले हार्ट्स निकलते हैं. I think it's cute, I think it's nice, so I don't shy away. I don't indulge, I don't shy away, पर मैं उसे एड्रेस कर देती हूँ. So अगर समझिए बंदा अच्छा है और बट फिलहाल उसे वो फील हो रहा है जो हो रहा है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मली अच्छे से विद रिस्पेक्ट उससे बात कर लेती हूँ. तब क्या होता है ना, वो जो बबल है ना, वो फूट जाता है. हाँ, ब्लास्ट हो जाता है. हाँ, तो बेसिकली वो नहीं रहता कि ओ माय गॉड, यू नो, लाइक ओह शी इज सो नाइस, तो सडनली यू हैव अ लॉट मोर टू टॉक टू. सडनली इट्स वो आपके दिखने से आगे जाता है कॉन्वर्जेशन. यू नो, इट्स अबाउट आप कैसे इंसान हो, आप कैसे, तो वो बैलेंस हो जाती है एनर्जी. तो वो लाइकिंग रहता है लेकिन वो हार्मफुल नहीं रहता. And he can be a potential good friend or best या friend. why not? अगर बंदा सही है तो बिल्कुल. तो ऐसा हुआ है कि जिससे आप पे क्रश हुआ हो, बाद में वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया हो? डेफिनेटली. और ऐसा कई बार होता है. सी, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो नॉर्मल एक अट्रैक्शन वाला सिस्टम है, वो तो है ना, इट्स बाय नेचर. करेक्ट. सो वो तो आप किसी से भी मिलो, कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ अच्छा लगा, इसीलिए तो यू आर कनेक्टेड. But when you go beyond just the, you know, outer layer, तब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है. वो बिल्कुल दोस्त बन जाते हैं, मतलब बढ़िया वाले जिगरी वाले दोस्त. तो रुचा, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं और आपका क्या टेक रहता है उस पर? बहुत वैरायटी है ऑनेस्टली. मतलब कुछ लोग हैं जो कहते तू ना बिल्कुल दाल चावल सी है, घी डाला हुआ, यू नो, वेरी कंफर्टिंग, वेरी होमली, वेरी नाइस. कुछ कहते कि तू पूरी तंदूरी चिकन है, मतलब फुल मसाला एंड ये वो, ना, कैटेगराइज करते हैं जो साइड उन्होंने देखी है. बट मैं भाई पूरी थाली हूँ, फुल पावर थाली हूँ. मतलब थोड़ी चटपटी, थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी कंफर्टिंग, थोड़ी सी मसालेदार. तो बेसिकली या तो हर एक अलग अलग डिश मुझ में दिखता है. So you have variety. I have a lot of variety. And it comes natural to you? Yeah. No effort. I don't believe in putting effort in life. I just feel कि मजे से जियो, जैसे हो वैसे रहो, खुद को ओन करो. Life becomes simpler, ना? So love yourself the way you are. Yeah. वो actually, you know, आपने जब भी मेट तो देखी होगी ना. तो जब भी मेट आई थी, तो जो भी मेरे दोस्त देखकर आ रहे थे ना, बोलते रूच वो तो तू है, गीत तो तू है, यू नो, लाइक बिकॉज फॉर पीपल गीत हैज हैपेंड अर्लियर, फॉर माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली आई हैव हैपेंड अर्लियर. सो मैंने वो तो तू है. सो या मैं अपनी फेवरेट हूँ कैटेगरी. What is the take on cosmetic surgery, रुचा? Like जैसे एक्ट्रेसेस से और मॉडल्स से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं to look perfect, whereas you are in your skin. आप अपने आप को वैसे ही ओन करती हैं जैसे आप हैं. तो आपका इस पे क्या टेक है? ये जरूरी है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इट्स लाइक चॉइस. It's a choice and उसमें कुछ सही गलत नहीं है. If somebody feels more confident
doing it, great for whoever, like it's see, I'm very non-judgmental, so I think it's a personal choice. There are people जिनके careers बनते हुए देखे हमने after those surgeries and all of that, so good for them. And there's someone like me who has not it, मतलब in fact मेरे life का पहला facial, you won't believe what are the chances, has happened last month. Is it? आई एम नॉट किडिंग, मैंने कभी लाइफ में फेशियल नहीं कराया था. हाँ? और वो भी इसलिए क्योंकि मैं काफी बीमार थी, प्लस मैं ट्रैवल करके आई थी, तो स्किन वाज आल्सो क्वाइट टैन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई हैड अ शूट. सो माय डर्मैट सेड कि यू नो व्हाट, जस्ट गेट दिस थिंग डन, लाइक इट्स अ फेशियल, सो रिजुवेनेट करने के लिए it will just help you, whatever 10, 20, 30%, it will just help you. I said okay, let's do it. And when I was getting it done, I was so excited because I kept telling that female, आपको पता है पहली बार फेशियल करा रही हूँ, आपको पता है पहली बार फेशियल करा रही हूँ. So I have been on this end of the spectrum. There are people who are on the other end, and both are fine. You know, But 10, 20 years back, 30 years back, हमारी जो एक्ट्रेसेस थी वो कुछ भी सर्जरीज नहीं कराती थी. Yet they look हमें so नहीं पता pretty. था, हमें नहीं पता था. We नहीं, don't but know. तब का इतना होता था. इतना नहीं Like था. some 30 years back. They But see, still look also so pretty. see, also you have to understand because of this entire social media. हाँ, so thing it's a and all that. competition ना कि इसने Correct. करा लिया तो मैंने भी. Correct. So somewhere you have to decide for yourself. Yes. What are you seeking? Okay, how do you want to go about Is it actually required or no? Yeah, see, requirement is a very personal thing, ना यार. Like maybe आपको लगे कि रुचा, you know what, अगर मैं थोड़ा सा filler botox कर लूँ, I will look nicer, I will look, my skin will look tighter. और आप कहोगे कि नहीं, you know what, I don't want to do anything on my face. I think I just want to own my wrinkles and my age and whatever. So like हर एक का personal choice है, and उसमें कुछ सही गलत नहीं. I haven't done it, but I'm okay with, like, I have no problem with people getting it done. And if you ask me if it is a necessity, it does make a difference, definitely. क्योंकि all said and done, it is showbiz, दिखने का और उसका ये. But आजकल I think being real is celebrated. Yeah, it's celebrated. So I love it. I Being love real. it. All real. And what next? Lunch. Lunch तो हम करेंगे. but नहीं, आप- big थाली. So you're a foodie. How do you maintain yourself? I'm a super foodie. मतलब I'm one of those ना जो लोनावला जा सकती है बस वो कॉर्न पकोड़े खाने के लिए. You know, I can actually travel to a place to eat what is special to that space, place, land, whatever. How do I maintain one good BMR? तो वो तो thankfully God gifted. DNA. हाँ, DNA. और मैं disciplined हूँ. मतलब in terms of workouts or diet timings and all, I'm very on point with it. बाकी खाना तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे सब टाइप का खाना पसंद है और मुझे बहुत सारा खाना पसंद है. So And work-wise, what else is there in your kitty next? work-wise, so I have two projects. One is a web series and one is a film. Not to talk about it, you know how the contacts and Hindi? all work. No, actually this is South Indian. Like Okay. it's in 4 languages down south. So all 4. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. Okay. So all 4 together, and of course Hindi uska dub hoga. But that is what is in the pipeline. But And yeah. Hindi series like Criminal Justice next season. नहीं, or- हॉटस्टार का जो ये था ग्रेट इंडियन मर्डर, उसका सीजन 2 आना बाकी है. क्रिमिनल जस्टिस में तो मेरे कैरेक्टर की कहानी उस शो में पूरी हो गई. The Great Indian Murder में next season नहीं होता है. अब वो जब शूट होगा. बट हाँ, ऑफ कोर्स You don't want to talk about it. No, I don't know about it because see how this entire system is that वो पूरा scripting level से सब होने के बाद then we actually move on to the shoot wala point when the actors come in. So there's still time. And what's the message to your audience and our audience? The message to all you guys, oh my god. Okay. Don't go in for too many messages from other people. Just live your life the way it is. Embrace yourself. वो अपना कल हो ना हो वाली जो लाइन है ना कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, बस वही है लाइफ में, वही है. Be in the moment, have fun. ज्यादा खुद को सीरियसली मत लो, ज्यादा सोसाइटी को सीरियसली मत लो, and do as you feel. And आपके बारे में क्या क्या कमेंट लिखे? मेरे बारे में ना आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल लिखिए
और अगर अपने अच्छे खासे अपनी किटी बन जाती सवालों की ना, तो I'll come back and we'll actually do a round 2. So yeah, actually that would be quite cool. What do you think? You ask me questions, good questions, huh? Good, legit questions. And if there are good amount of good questions, we will connect and we will do part 2. क्योंकि रुचा इतनी बातों नहीं है कि आज के सेशन में कम पड़ गया मैं. Oh yeah. जिंदगी इतनी चीजें हैं ना, जिंदगी में बात करने के लिए टाइम तो चाहिए. So let's order for lunch. Okay. All right. Bye bye.